Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your life 1 year from now. Like, this is a 1 year ahead prediction. So whenever you're gonna watch this reading, whenever you're gonna listen to this reading, you're gonna resonate with this reading. So let's get started with your reading. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. अभी आ रहा है आपके सामने स्क्रीनशॉट. तो जैसे स्क्रीनशॉट में आपको 3 पिक्चर्स नज़र आ रही है और नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं. सो पाइल नंबर 1 इज़ गोना बी ऑफ दिस बोट वाली पिक्चर. पाइल नंबर 2 जहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई है, ओशन व्यू. देन वी हैव पाइल नंबर 3 जो माउंटेन्स वाला है, रॉकी माउंटेन्स आई गेस. सो ये 3 पिक्चर्स हैं. आपको जो पिक्चर सबसे अच्छी लग रही है और आपका मन कर रहा है वहाँ जाने का, वो वाली पिक्चर, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. ऑल राइट. सो अभी ये 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट हम करेंगे. मतलब यही जो है, यही स्क्रीनशॉट 30 सेकेंड्स तक और चलेगा. एंड यू हैव टू डिसाइड योर पाइल, यू हैव टू पिक योर पिक्चर. और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं. वहाँ पर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट, यही 30 सेकेंड्स का और इसको बढ़ाते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the boat वाली picture. Let's get started with your reading. हम tarot से ही शुरू करेंगे. Pile number 1. Your life 1 year from now. How does your life looks like? What's your reality 1 year from now? Pile number 1 की life कैसी है 1 year from now? What are they doing? How life is treating them? What is happening in their life? Okay, we have Knight of Swords. Life seems to be really quick 1 year from now. It seems that you're really busy in something. कोई challenge, कोई obstacles आप obstacle face कर रहे हो 1 year from now, and you're winning over your obstacle, you are winning over your enemies. And it shows कि mind बड़ा clear है, mind बड़ा sharp है. इनफैक्ट आपकी memory skill जो है, memorize करना, वो skill काफ़ी improved यहाँ पर नज़र आ रही है. And in fact, you're taking quick decisions. You already have thought a lot. You've wasted your time. मतलब बहुत सारा समय आपने शायद जो है सोचने समझने में बिता दिया. पर 1 year from now जो है, it seems that you're taking quick decision. और सोची समझी कोई चीज़ आप कर रहे हो और कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज को फेस करके विन कर रहे हो. इनफैक्ट यू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड दैट दिस थिंग नीड्स टू बी डन, और ये नहीं करनी है, ये करनी है. सो इट शोज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इज देयर. Then we have the 10 of Cups. Beautiful. 10 of Cups here shows that you're enjoying, you are happy, you're emotionally satisfied with your family. And even it shows that within 1 year, if you are in a marriageable age, you can marry. अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो विद इन 1 year you can actually get married, and even 1 year from now you can conceive, or you already have a child 1 year from now somehow. So जो अभी से, whenever you are watching this reading, तो अभी से जो है, we can say 1 year में you can get married, and 1 year from now you can have your own family. You may start your own family and you're living with your family. You're really happy or satisfied. जो आपने सोचा था अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, वो गोल्स, वो ड्रीम्स आप जी रहे हो 1 year from now.
And if you were thinking that when will I have my own home, my own property, so 1 year from now you have a home. Maybe you have bought a home in the countryside, या फिर आपने कोई apartment लिया, but you have your own property, you have your own home, and your family is really satisfied with you. You're really happy with your family. They are happy with you. Then we have the Tower card, we have Ace of Pentacles, we have King of Pentacles. ये तीनों कार्ड एक साथ आए हैं जो कि शो करे स्पेसिफिकली दिस टावर कार्ड शो सडन चेंज. जैसा सोचा था वैसा ना होना, सडनली प्लान का चेंज होना. और क्योंकि ये पेंटिकल्स के कार्ड्स के साथ आए हैं ये टावर कार्ड, सो इट शोज करियर में जो है कोई सडन चेंज हो रहा है. और उस सडन चेंज की वजह से यू आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू अर्न. और उस अपॉर्चुनिटी से यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स. यू आर बिकमिंग फाइनेंशियली रियली स्टेबल, सिक्योर. यू हैव लॉट्स ऑफ मनी. काफ़ी मनी आपके पास स्पेयर है जिससे आप घर भी खरीद सकते हो, जिससे आप अपनी सारी नेसेसिटीज़ भी खरीद सकते हो, जिससे आप अपने शौक पूरे करते हो. सो टावर कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है विद इन 1 year कोई ऐसी चीज़ होगी आपके करियर में जो आपको शायद बिल्कुल अच्छी ना लगे, क्योंकि वो आपके प्लान अकॉर्डिंग नहीं चल रही है. और यू नो वी हियर पीपल सेइंग कि जो यूनिवर्स है या जो गॉड है, दे हैव मच बेटर प्लान दैन अस. हमसे भी बहुत अच्छा प्लान उनके पास है हमारे लिए, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं. वी जस्ट नीड टू सरेंडर आर सेल्फ. सो द टावर हेयर शोज़ कि कोई करियर में अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है, आपने कभी सोची भी नहीं थी. और ये टावर ये भी शो कर रहा है मे बी आप अपना करियर, मे बी आप अपना जॉब या अपना बिजनेस बदल रहे हो. और इस बदलाव को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो उतना जल्दी आपके लिए करियर में जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी. कोई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी विद इन 1 year जो आपके वर्क से, आपके करियर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है. ऐसा काम आपने शायद पहले नहीं करा, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये काम, और इससे आपको बहुत इनकम जनरेट होगी. यू आर जॉइनिंग सम न्यू कंपनी और गेटिंग अ न्यू जॉब, या फिर आप अपने बिजनेस में कोई नई चीज़ कर रहे हो और वो काफ़ी थ्राइव कर रही है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत मनी है, जिससे आपने बहुत मनी अर्न कर लिया एंड यू आर हैप्पी विद इट. दैट्स व्हाई यू बॉट अ होम. योर फैमिली इज़ रियली प्राउड ऑफ यू. यू हैव फुलफिल्ड योर होप्स, विशेस, डिज़ायर्स. तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. यू आर बिकमिंग मोर डिटरमाइंड कि ये ही करना है और ये नहीं करना. मैं चाहे जितना मर्जी ये चीज़ मुश्किल है, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, आई शुड डू इट. ऐसा एक डिटर्मिनेशन अंदर यहाँ पर विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है. एंड आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन नज़र आ रहे हो 1 year फ्रॉम नाउ. यू नो हाउ टू अर्न मनी, यू नो हाउ टू मेक श्योर दैट दिस डील हैपन्स. दुनियादारी की आपको पूरी समझ यहाँ पर नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. यू हैव हाई रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड इन सोसाइटी. आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है सोसाइटी में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है. प्लस विद द ग्रेप्स हियर इट शोज दैट यू आर गेटिंग द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क. जो आपने पास्ट में हार्ड वर्क करा, जिसको आपको लगा कि भाई मैंने तो हार्ड वर्क करा था पर मेरे को कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड, बट कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. तो आपने जो गुड चीज़ें करी थी उसका रिजल्ट आपको जो है 1 year फ्रॉम नाउ दिख रहा है कि हाँ, जो मैंने हार्ड वर्क करा था उसका रिजल्ट है, उसका जो है मुझे रिटर्न आया है. So we see this 1 year from now for you. Then we have the key, we have opportunity card. Keys open doors. And अगेन इट शोज़ कि आपके पास अपनी कार है, अपना व्हीकल है और अपना घर भी है. यू आर गेटिंग द की टू योर अपार्टमेंट. अपनी चाबी मिल रही है आपको अपने अपार्टमेंट की, अपने घर की जो आपने बनाया. इट कैन हैपन दैट यू हैव लॉट ऑफ मार्बल वर्क एट योर होम, एट योर प्लेस. इट ऑल्सो शोज़ दैट यू कैन हैव योर ओन ऑफिस 1 year from now. Infinite opportunities are there. And we also see Saturn here. Saturn career related ग्रह है, तभी ये Capricorn और Aquarius साइन को रूल करता है, जो कि करियर, वर्क प्लेस, गेन्स फ्रॉम करियर, मनी, इनकम, उसको शो करता है. सो इट शोज एंड अगेन सैटर्न इज हार्ड वर्क, सैटर्न इज ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस. जो आपने सेक्रीफाइसेस करे अपने वर्क की वजह से वो वेस्ट नहीं जाएंगे. सैटर्न शोज की स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हो रही है. एंड 1 year फ्रॉम नाउ यू विल बी एबल टू सी कि येस यू हैव बिल्ड योर सेल्फ समथिंग
इन लाइफ, आपने अपना घर बनाया है, आपने अपना रिस्पेक्ट रिगार्ड बनाया सोसाइटी में, यू विल बी एबल टू सी द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, प्लस यू आर गेनिंग, यू आर गेटिंग अ होम और यू आर गेटिंग अ व्हीकल 1 year from now. And of course opportunity card ये तो it shows 1 year from now you are also getting an opportunity in terms of career या in terms of luxury you are getting some opportunity कि luxury चीज़ आप खरीद पा रहे हो या फिर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी कर पा रहे हो. And you are also getting some major opportunity in terms of land, real estate, property, major opportunity in terms of work, career. ये यहाँ शो हो रहा है. And again we have number 17. 7 and 1 is 8. Number 8 is about transformation, death and rebirth, change, going from rags to riches. You can even have your sun, moon, rising, Atma Karaka, planet holding the highest degree in your chart. फिर कोई और planet Scorpio sign में placed हो सकता है, Capricorn में placed हो सकता है, फिर Aquarius में placed हो सकता है. इसके भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. D1 चार्ट, D12 या D9 नवांश चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट नज़र आ रही है. स्कॉर्पियो साइन, केप्रिकॉन और एक्वेरियस साइन में प्लैनेट ज़रूर प्लेस हो सकते हैं. इन और जो इन विशाखा नक्षत्र हो गया, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र हो गया, एंड इवन पूर्व भद्रपदा नक्षत्र हो गया, ये यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. एंड आई फील पाइल नंबर 1, यू गाइज आर हाईली एजुकेटेड पीपल. आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री हो सकती है, फ्यूचर में आप मास्टर्स डिग्री ज़रूर लोगे. दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. Here we have the clouds card. Here it says distractions. So with the clouds here, it shows that you are able to spend your time in distraction. मतलब आपके पास इतना समय है कि you can live your life. This distraction card is not a negative card. This distraction shows calmness. Clouds जो है, बचपन में जैसे गर्मियों की छुट्टियों में अगर हम खिड़की से बाहर देखते थे, नीला आसमान हमें दिखता था, क्लाउड्स हमें दिखते थे और ज़िंदगी बड़ी अच्छी दिखती थी, अच्छी लगती थी. अगर हम आज भी कहीं वेकेशन पर जाए, क्लियर मौसम है वहाँ का और हम लेटे हुए हैं, वो भी किसी पेड़ के नीचे, तो कितना रिलैक्सिंग लगता है, कितना अच्छा लगता है. ऐसा लगता है हमारी लाइफ कितनी अच्छी है. आई डोंट वांट टू ट्रेड माई लाइफ विद एनीवन. फील होता है ना. तो ये क्लाउड्स कार्ड, ये डिस्ट्रैक्शन कार्ड ये शो करे कि आप अपनी लाइफ जी पा रहे हो. आपका काम आपकी लाइफ के आड़े नहीं आ रहा है. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे काम की वजह से मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाता है, जी पाती. हम पैसे तो कमाते हैं पर हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते. ऐसा आपको नहीं फील होगा. आपको ऐसा फील होगा कि हम मनी भी अर्न कर रहे हैं पर हमारे पास इतना समय है कि हम उस मनी को इंजॉय कर पा रहे हैं, रिलैक्स कर पा रहे हैं और एक सुकून की ज़िंदगी जी पा रहे हैं. So this is really beautiful, pile number 1. Like it shows that आपने बहुत अच्छे कर्मस करे लाइफ में, जो आपकी लाइफ ऐसी यहाँ पर नज़र आ रही है और ऐसी लाइफ आप जी रहे हो 1 year from now. So that's really beautiful. Let's pull some specific cards about your career, about your finances, about your relationships, about your physical and mental health. So let's pull some cards. अगर आप एजुकेशन में हो, जॉब, बिजनेस में हो, क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या प्रिडिक्शन है पाइल नंबर 1 के लिए, उनका करियर कैसा है 1 year from now. पाइल नंबर 1. Okay. We have Knight of Cups. Knight of Cups here shows कि आप अपने करियर में बहुत खुश हो. आप अपने करियर में कोई नई शुरुआत कर रहे हो 1 year from now. और अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में यू आर हैप्पी. आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई वर्क पेंडिंग नहीं है. जैसे एजुकेशन आता है वो हम मेमोराइज़ कर पा रहे हैं और ऐसा स्ट्रेस नहीं फील हो रहा है इस एजुकेशन की वजह से. स्ट्रेसफुल एजुकेशन नहीं, आपको समझ आ रही है चीज़ें. इनफैक्ट यू आर पैशनेटली इन्वॉल्व इन योर एजुकेशन बिकॉज यू सी अ बेटर फ्यूचर विद दिस एजुकेशन. और आपको अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेंशन में नहीं हो कि मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को मेमोराइज नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड यू सी अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ विद द एजुकेशन यू आर गेटिंग.
अगर आप जॉब में हो तो जॉब में जॉब की वजह से आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड यू आर हैप्पी, एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको जॉब में नज़र आ रहा है. ऐसा नहीं है कि दूसरी सीट्स का काम भी आपको करना पड़ रहा है. नो, यू आर डूइंग वॉट यू नीड टू डू, वॉट यू आर सपोज टू डू, और अपने वर्क आवर्स में आप काम करते हो और वर्किंग आवर्स जब ख़त्म हो जाते हैं देन यू इन्जॉय योर लाइफ. दिस इज़ वॉट आई सी हैपनिंग. एंड अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में इट शोज़ कि आप रिमोटली काम कर रहे हो, यानी आपको एक ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बैठकर ही काम करना है. नहीं, आप डिफरेंट जगह से काम करते हुए नज़र आ रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से काम करते हुए नज़र आ रहे हो. और अगेन बिजनेस की वजह से भी यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है. यू आर रियली इन्जॉइंग योर वर्क, यू आर गेटिंग गुड इनकम फ्रॉम योर बिजनेस. ये यहाँ पर शो हो रहा है. ऐसा नहीं है यू आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस. इट शोज़ विद द नाइट ऑफ कप्स कि आप रिमोटली काम कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या आप डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो काम कर रहे हो एंड यू आर इन्जॉइंग द वर्क. And you're also meeting people जो different ethnic background के हैं due to your business. About your finances, अगर आप खुद earn करते हो तो आपके लिए क्या information है, आपके finances कैसे हैं, आपकी savings कैसे हैं. और अगर आप खुद earn नहीं करते तो परिवार में जो आपके earn करता है उनकी savings, उनके finances कैसे हैं. और ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं. All right, we have the Nine of Wands. Nine of Wands here shows that there is, we can say, struggle to save money. There is money for sure. Money यहाँ पर भरपूर है, money यहाँ पर काफ़ी है, abundance है money की. But मनी जो है यहाँ पर खर्च भी हो जाता है. एंड आई सी दैट यू आर क्रिएटिंग बाउंड्रीज हेयर, यू आर क्रिएटिंग वॉल्स हेयर. सो इट शोज़ कि आपका मनी कहीं ना कहीं कोई बिल्डिंग को बिल्ड करने में लग रहा है, किसी घर को बिल्ड करने में लग रहा है, ऑफिस को बिल्ड करने में लग रहा है. यहाँ पर ये शो रहा है सेव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यू आर बिल्डिंग समथिंग, बट यू हैव लॉट ऑफ मनी विद यू एंड दिस मनी इज ग्रोइंग. एज वी सी द लीव्स coming from the wands, it shows that the money is growing, and it shows that you can even have a money plant at your place, at your home. That is also we see. But yeah, with the Nine of Wands, it shows कि savings नहीं हो पा रही because you are building something, building a home, building an office. So ये यहाँ पर show हो रहा है. And you're also being very particular about the interiors of that place. You're pretty involved in it. जब बात आती है आपके रिलेशनशिप्स की, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की पर्सनल लाइफ. All right, we have the Two of Cups. Two of Cups is such a positive card. And we also have the Ten of Cups, जो कि again family, happiness और satisfaction, emotional satisfaction को show करता है. So with the Two of Cups, if you are in a, I see that you are in a relationship, pile number 1. Like you, even if you do not want to right now, but 1 year from now, you have someone in your life जिससे आप बड़ा connected महसूस करते हो, जिससे, और ये person एक different ethnic background या different culture के हो, इनकी upbringing आपसे बहुत ज़्यादा different हो, ये person एक different religion के भी हो सकते हैं, या फिर ये person बहुत ज़्यादा unorthodox, unconventional in nature हो सकते हैं. And it shows both of you are coming from different backgrounds, but you have love for each other, understanding of each other and respect for each other. और आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, आप एक दूसरे को इमोशनली सेटिस्फाइड रखते हो. तो ऐसा पर्सन जो है आपकी लाइफ में है 1 year from now. And it also shows here both of you will love to go on dates to योर फेवरेट रेस्टोरेंट्स, या फिर आप दोनों को जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है. खाने पीने के दोनों आप बहुत ज़्यादा शौकीन नज़र आ रहे हो. 1 year from now you guys are becoming foodies with your partner. तो ये यहाँ इन्फॉर्मेशन है. दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बड़ा रिस्पेक्ट, रिगार्ड और प्यार, स्नेह प्यार है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. इनफैक्ट योर फैमिली इज़ रियली हैप्पी फ्रॉम यू. दिस पर्सन, योर लाइफ पार्टनर और योर लव्ड वन इज़ रियली हैप्पी फॉर यू. तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है.
and this person, the person you may get in relationship with, or the person who is going to be with you 1 year from now, ये person के chart में sign of Cancer या फिर sign of Virgo या फिर sign of Pisces ये बड़े prominent होंगे. उनका sun moon rising आत्माकार का इन signs में placed हो सकता है. Especially the nakshatras like Pushya, the nakshatras like Revati, the nakshatras like Uttar Falguni, even Hasta, ये बड़ा prominent हो गए इनके chart में. इनके planet ज़रूर placed होंगे इन nakshatras में. And about your health, pile number 1. वेल्थ भी यहाँ दिख रही है, रिलेशनशिप भी यहाँ अच्छे दिख रहे हैं. हाउ इज़ द हेल्थ? बिकॉज इवेंचुअली हेल्थ इज़ वेल्थ. How is health of pile number 1 year from now? All right. We have the 5 of Wands. All right. 5 of Wands here shows that you are taking some sort of medicine, or you are taking some sort of health drink or something to keep your health good, to keep your physical health great, and you become more stronger. I feel कि with the 5 of Wands ऐसा major health issue नहीं है, but there is this fear कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ या मेरी health मेरा साथ दे हमेशा. So you're taking some precautions as well, but you seem to be really careful about your health. इवन यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, पर यहाँ पर फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं है, बट इट सीम्स दैट यू आर वेरी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ. ऐसा हो सकता है पाइल 1 कि आपने अपने पास्ट में या भी प्रेजेंट में आप ऐसे हेल्थ इश्यूज से डील करो जो आप कभी फिर से डील नहीं करना चाहते. हेल्थ इश्यूज़ ही होते हैं जो कि हमें अपनी लाइफ पूरी तरीके से अच्छे से जीने नहीं देते हैं. सो विद द 5 of Wands कार्ड आई डू फील दैट यू आर नॉट डीलिंग विद हेल्थ इश्यूज 1 year फ्रॉम नाउ, बट यू आर बीइंग कॉशियस, यू आर एक्सरसाइजिंग, you are taking care of your happiness, of your mental health, you're eating good, you're eating right, you're eating on time. बहुत cautious यहाँ पर नज़र आ रहे हो हेल्थ को लेकर. एंड यू आर टेकिंग सम हेल्थ ड्रिंक्स या कुछ ऐसा हेल्दी, या तो बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट है दैट वी सी, ताकि आप फिर से बीमार ना हो. सो कहीं ना कहीं बीमार ना हो जाओ, इसका डर या इसका एक कॉशन यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है. बट यू आर नॉट अनहेल्दी, यू आर हेल्दी, यू आर इन अ हेल्दी स्टेट, योर हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी भी बहुत हेल्दी है. बट देयर इज जस्ट दिस लिटिल फियर कि मैं बीमार ना हो जाऊँ फिर से. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. थोड़ा अपने आप को मेंटल काउंसिल करने की ज़रूरत है, अपने आप को काउंसलिंग देने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ समथिंग विच वी आर गेटिंग. सो या, लेट मी पुल सम oracle cards here. Last but not the least, यहाँ पर okay. और क्या इन्फॉर्मेशन है? सो वी हैव पर्सनल पावर कार्ड. इट सेज पावर एनिमल. यहाँ पे तो हमें भालू नज़र आ रहा है और यहाँ पर ईगल भी नज़र आ रहा है. एंड वी हैव नंबर 20. अगेन 2 + 0 is 2. इट शोज दैट यू हैव लॉट ऑफ वेल्थ. नंबर 2 जो है वो फैमिली और वेल्थ रिलेटेड, सेविंग्स रिलेटेड भी इनफैक्ट नंबर है. तो इट शोज़ कि सेटिस्फैक्ट्री है चीज़ें, फैमिली सेटिस्फाइड विद यू. आपने कहीं ना कहीं उनका नाम बहुत रोशन करा है. एंड इवन विद द बेयर कार्ड हियर, बियर एंड द not bear, it's bear and eagle. It shows कि आप opportunities को far away से जो हो देख लेते हो, पहचान लेते हो. Plus you have the time to rest, to relax, go into that hibernation. Again आप अपना me time भी बहुत अच्छे से spend कर रहे हो, और आप अपना work time भी, hunting time भी बहुत अच्छे से spend कर रहे हो. आप hunt कर पा रहे हो opportunities, grab कर पा रहे हो opportunities और उनको fulfill भी कर पा रहे हो. So it seems to be relaxing, it seems to be great. You are in the personal power. आप अपने best version हो 1 year from now. ये यहाँ पर information है. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically हम देखें तो sign of Cancer, sign of Virgo, sign of Scorpio, sign of
Capricorn, Aquarius and Pisces seems to be prominent in your chart. Cancer में we have the nakshatra of Punarvasu, Pushya, Ashlesha, और वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. केप्रिकॉन में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाख, पूर्व भाद्रपदा. फिर पाइसीज में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती. तो ये नक्षत्रस, ये साइंस में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1 चार्ट और इन द D12 चार्ट और इन द D9 नवांश चार्ट. तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है आपके लिए पाइल 1. सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out on the website itself. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the picture जहाँ पर stairs है और ocean view है. Let's get started with your reading. तो हम tarot से ही शुरू करेंगे, main tarot से ही शुरू करेंगे. Okay, we already have 8 of Wands. Your life 1 year from now. What is the reality for you 1 year from now? So we have the 8 of Wands. It shows कि you're busy. You're extremely busy. A lot of opportunities are there. You can feel also a bit overwhelmed by these opportunities which are coming towards you. In fact, जो आपकी hopes, wishes, desires थी, जो आप सोचते थे बिल्कुल भी practical नहीं है, हवा में या भी कुछ practical reality में ये चीज़ें convert नहीं है, वो चीज़ें practical reality में जो आप सोचते हैं practical नहीं है, वो सच में practical reality में convert हो रही है वो चीज़ें 1 year from now. And you're really excited, but also at the same time you're overwhelmed, you're a bit hesitant. जैसे वो स्टेज फ्राइट होता है ना, जैसे भाई स्टेज पर आना भी है पर हाथ पैर भी अब ठंडे हो रहे हैं स्टेज पर जाने से पहले, या सोच सोच के जो है बड़ी हेजिटेशन और बहुत ज़्यादा एकदम से शाय नेचर बन गया. तो इट्स दैट फीलिंग, बट यू ऑलवेज वांटेड टू डू दिस. और अब ये 1 year फ्रॉम नाउ होता हुआ नज़र आ रहा है. जो आपको लगता था ख्याली पुलाव है, ये नहीं हो सकता, वो हो रहा है 1 year फ्रॉम नाउ. वो होप्स, विशेस, डिज़ायर्स जो है वो पूरी हो रही है. एंड यू आर फीलिंग अ बिट ओवरवेल्म्ड एज वेल बिकॉज ऑफ दैट. सो या, 1 year from now, how is life for pile number 2? 1 year from now, how does pile number 2's life looks like 1 year from now? Okay, we have the 3 of Swords. कोई यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग चीज़ भी हो रही है. Let me pull a clarity card about 3 of Swords. 3 of Swords के लिए clarity. Okay, we have the 2 of Pentacles. Okay, all right. So it shows कि your financial situation is improving, but कहीं ना कहीं कोई रिलेशन जो है जो आपके करियर में आपने बनाया था, वो अगेन करियर रिगार्डिंग फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई क्लाइंट हो सकता है. अगर आप बिजनेस में हो तो कोई क्लाइंट हो सकता है जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उनके साथ आपका, और आप उन्हें वर्क में ही मिले थे अगेन, बट उनके साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. मे बी उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप और ये पर्सन, आप दोनों मिल नहीं सकते दोबारा, या ऐसा कुछ हुआ जिसने आपका दिल ही तोड़ दिया. इस पर्सन ने कुछ आपको ऐसी बात कही कि दिल ही तोड़ दिया. अगेन यू मेट दिस पर्सन इन वन ऑफ योर डार्केस्ट टाइम्स ऑफ लाइफ फाइनेंशियली. मतलब आप इस पर्सन से तब मिले थे जब आप अपने फाइनेंशियल लोएस्ट में थे, और इन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी थी और आपका बहुत साथ दिया था. 1 year फ्रॉम नाउ इनका साथ छूटता हुआ नज़र आ रहा है. And 2 of Pentacles and with the 3 of Swords, it also shows कि your financial situation is really improving. But इस financial improvement के साथ कोई दोस्ती का यहाँ पर end हो रहा है. Again, you met this person
at your work or through your work and they really helped you out, you really helped them out, but फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से you guys are not together anymore. ये एक फ्रेंडशिप का टूटना नज़र आ रहा है. So that's there. Something more 1 year from now. एंड आई ऑल्सो फील कि 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आपकी होप्स विशेस डिज़ायर्स पूरी होने लग गई है 1 ईयर फ्रॉम नाउ. आप जैसा अपने लाइफ को जीना चाहते थे वैसे आप जी पा रहे हो. एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन की आपकी लाइफ में अब कोई जगह ही नहीं रही. दिस पर्सन इज़ मूविंग टू देयर चोजन पाथ. जो उन्होंने अपने लिए पाथ चूज़ करा है वो उस पर वॉक कर रहे हैं. आपका एक डिफरेंट पाथ नज़र आ रहा है. दोनों एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं. It can even happen especially with the 2 of Pentacles as we see the waves here. It shows ये person आपसे कहीं travel कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं आपसे किसी दूसरी state, city या country. And that really breaks your heart. That really makes you sad कि आपका दोस्त वो जा रहा है आपकी लाइफ से. Something more about 1 year from now. All right, so we have the 8 of Pentacles. Okay, you're getting the right money of your craft. जो आप काम कर रहे हो बड़ा दिल लगा कर वो काम कर रहे हो, बड़ा डिटेल ओरिएंटेशन से काम कर रहे हो, मन लगा कर काम कर रहे हो. इनफैक्ट लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर रहे हो, बट यू आर गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ मनी. राइट मनी जो आप डिज़र्व करते हो उस तरह का मनी आपको मिल रहा है अपने क्राफ्ट का, अपने काम का. और 8 ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है दैट यू आर वेरी वेरी मच इन्वॉल्व इन योर वर्क 1 ईयर फ्रॉम नाउ. आपके पास फुर्सत नहीं है सांस लेने की भी. इट सीम्स कि आप इतना ज़्यादा बिजी हो, बट यू आर रियली हैप्पी विद द वर्क यू आर गेटिंग. जैसे वो जो एक्टर्स होते हैं ना, या जो लोग बॉलीवुड में जाते हैं, मतलब मुंबई जाते हैं कि भाई हमें एक्टर बनना है, और फिर बहुत स्ट्रगल के बाद फिर वो उनको एक्टर वो बन जाते हैं एक्टर, और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा काम आया है, तो बहुत लंबे समय के लिए वो काम वो करते रहते, इतने घंटे वो पूरा दिन काम करते रहते हैं, बट दे आर ऑल्सो गेटिंग द राइट मनी. और उनको खुशी होती है. तो वैसी खुशी, वो जो एक्टर बनने वाली खुशी होती है, उस तरह की खुशी आपको होगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपके पास इतना सारा काम आ रहा है. And I do feel pile number 1, you guys are the artistic people. You guys are the people जो कहीं ना कहीं पेंटिंग, आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, आर्किटेक्चर और सिंगिंग, म्यूज़िक, एक्टिंग, इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. You guys are the artistic people. Then we have, and also I see some of you guys are in law. You're working in law. Some of you are also working in finance sector. Some of you can also be healers or can be relationship experts or life guru, life coach. Okay, we have the traffic cone here. It says caution. So with the traffic cone, I see 1 year from now, if you didn't had, like अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो 1 year from now you have a driving license. And the traffic cone, again, it depends upon the age as well. If you are in the age जहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हो, so you are getting a driving license 1 year from now. And I feel that for many of you, driving बड़ा मुश्किल काम है. For many of you. But it's like 1 year from now you will feel कि नहीं, बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान रखना होता है, पर बहुत ईजी है, हम कर लेते हैं ड्राइव. सो आपका ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है सिस्टम. और ट्रैफिक कॉशन ये भी शो कर रहा है दैट यू आर बीइंग अगेन समवन जो बहुत ध्यान से काम कर रहा है. इवन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ हो रही है कि आप जो काम कर रहे हो, जो आपका कर्म है, बड़े ध्यान से मन लगाकर वो आप काम करते हो, दिल लगाकर आप काम करते हो. And then we have the palm card. It says destiny. Some of you guys are the people जो astrology, occult, mysticism और palmology इसमें बड़ा interested होंगे. आप लोग कोई ऐसी बुक्स भी रीड कर सकते हो 1 year from now जो पाम रीडिंग के बारे में हो. एंड योर डेस्टिनी, एक तरह से भाग्य उदय होना 1 year from now ये नज़र आ रहा है. समय का साथ देना या भाग्य, डेस्टिनी का साथ देना, ये यहाँ नज़र आ रहा है. डेस्टिनी आपका साथ दे रही है. एंड द पाम ऑल्सो शोज ग्रेट इंटरेस्ट टूवर्ड्स अकल्ट थिंग्स रिलेटेड टू मिस्टिसिज्म, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, एंड इवन जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं उस तरह का काम करना, ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो 1 year from now.
So yeah, some of that's why like it shows कि some of you are also becoming very good astrologers or tarot card readers. So yeah, यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल आउट करते हैं आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके जो पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप, उसके लिए, और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए. स्पेसिफिक कार्ड्स, वी आर गोना पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स. अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में, एजुकेशन में हो, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में इन करियर. सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. क्वीन ऑफ वॉन्ड शो करता है अगेन बिजी आप हो, बहुत ज़्यादा अपने करियर में आप बिजी नज़र आ रहे हो, बट यू आर ऑल्सो बींग अप्रिशिएटेड. जैसे इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर बुके मिला है, फूलों का गुलदस्ता मिला, उसी तरह पीपल आर गिविंग यू समथिंग. आपको अप्रिशिएट करने के लिए पीपल आर गिविंग यू समथिंग. मे बी इट कैन बी फ्लावर्स, इट कैन बी समथिंग एल्स एज वेल, बट दे आर अप्रिशिएटिंग यू फॉर योर वर्क, फॉर योर एफर्ट. स्कूल में भी कोई कॉम्पिटिशन, कॉलेज या आपके, अगर आप लर्निंग स्टेज पर हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में हो, तो आपने कोई चीज़ विन करी है, मतलब कोई कॉम्पिटिशन विन करा. एंड अगेन इट इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी. इवन इफ़ यू आर इन फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, इफ़ यू आर इवन द फील्ड्स रिलेटेड टू मेडिकल, तब भी कोई 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, इवन अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कुछ यहाँ पर क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है, क्रिएटिव कंपटीशन है, उसमें आपने पार्टिसिपेट करा है और उसके अंदर आपने कोई चीज़ जीती है. यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ योर आर्टिस्टिक एबिलिटीज़. अगेन वो ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, किसी भी चीज़ को ब्यूटिफाई करना, कलर कॉम्बिनेशन, मॉडलिंग और एक्टिंग, सिंगिंग, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, ये एक्टिविटीज़ होंगी. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है आप बड़ा दिल लगाकर अपने काम में इन्वॉल्व हो. एजुकेशन में आप बड़ा दिल लगाकर पढ़ रहे हो और आपका मन लगा हुआ है अपनी एजुकेशन में. ऐसा नहीं फील हो रहा है कहाँ आ गया मैं, कहाँ आ गई मैं, ये मैंने क्यों कॉलेज चूज़ कर लिया, क्यों ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, क्यों मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया. ऐसा आप नहीं फील कर रहे. आप फील कर रहे हो कि नहीं, इस एजुकेशन में मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. और करियर में अगेन अगर आप जॉब में हो, तो जॉब में आप काफ़ी अप्रिशिएटेड नज़र आ रहे हो. आपके बॉसेस आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये यहाँ पर शो हो रहा है. आपका एक आपका नेम है, आपका नेम वैल्यू, आपका फेस वैल्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है. 1 ईयर फ्रॉम नाउ इन योर जॉब, पीपल नो यू बाय योर फेस, बाय योर नेम, एट योर कंपनी, एट योर वर्क. अगर आप बिजनेस में हो, तो बिजनेस में अगेन यू आर थ्राइविंग, यू हैव द मनी यू डिजर्व, यू आर गेटिंग न्यू क्लाइंट्स, यू आर ऑल्सो एडिंग सम न्यू थिंग्स इन योर बिजनेस. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है अगेन बड़ा पैशनेटली आप इन्वॉल्व हो अपने बिजनेस में और बिजनेस को आप बढ़ा रहे हो. यू आर समवन जो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं. मे बी एक डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री में लेकर जा रहे हो अपना बिजनेस, ये यहाँ पर शो हो रहा है. उसे आप स्प्रेड कर रहे हो थ्रू सोशल मीडिया. यू आर गेटिंग न्यू क्लाइंट्स, डिफरेंट क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट अगेन प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर फाइनेंसेस, ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स है. यहाँ पर फाइनेंसेस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके फाइनेंसेस, आपकी सेविंग्स 1 ईयर फ्रॉम नाउ. ओके, वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगैन. यहाँ पर भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट शोज कि द फाइनेंशियल गोल्स यू हैड वो अभी भी गोल्स ही हैं, वो आपने अभी इतने अचीव नहीं करे हैं. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि मनी आपने जो है कहीं इन्वेस्ट करा और उस इन्वेस्टमेंट से जितना आपको मनी मिलना चाहिए था उतना मनी आपको नहीं मिला. एंड दैट रियली ब्रोक योर हार्ट बिकॉज आपने बहुत कुछ सोचा था कि ऐसा होना चाहिए था. कई बार हम ऐसी जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे कोई ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेता है जहाँ हमें लगता है बड़ा बूम आएगा इस जगह पर वैसा नहीं हुआ. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक को शो करता है. सो इट शोज़ कि जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग थी या जो आपने सोचा था यहाँ पे बड़ा बूम आएगा मेरे को, वहाँ से जो है आपको डिससेटिस्फैक्शन मिली है, वहाँ से डिससेटिस्फैक्शन हुई है. इनफैक्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो कर रहा है कि आप ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हो मनी, क्योंकि आप मनी जो हो अपना कहीं और लगा देते हो.
जैसे अपने खाने पीने पे आप मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो कोई और जैसे पर्स हो, लग्जरी चीज़ें हों, या फिर आपके डे टू डे खाना जो है वो बाहर से खाना आ रहा है, तो समहाउ आप अपना मनी ज़्यादा सेव नहीं कर पाए, एंड दैट जस्ट डजंट मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि एक इंडियन मेंटालिटी है टू सेव 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 सेव, सबसे ज़्यादा सेव करना है, थोड़ा खर्चा करना है, ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हमारी इंडियन ग्रूमिंग है, जो कि आई थिंक इट्स गुड। बट यहाँ 3 of Swords यही शो कर रहा है कि अगेन यू आर अनएबल टू सेव एंड यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर अनएबल टू सेव। सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। एंड अबाउट योर, एंड आई फील कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे करियर में चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है पर आप सेव नहीं कर पा रहे हो, तो ये आप 1 year फ्रॉम नाउ की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो इसको आप ठीक कर सकते हो, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। करियर बहुत अच्छा जा रहा है, आप मनी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, पर आप उन लोगों में से होगे जो ये कह सकता है कि मनी तो अर्न करता है पर मनी टिकता नहीं है। तो मेक श्योर करो इस बात का कि आप अपने स्पेसिफिकली वी कैन से नॉर्थ डायरेक्शन में, स्टैंड इन द मिडल ऑफ योर होम, ओपन योर स्मार्टफोन कंपस, देखो नॉर्थ डायरेक्शन में रेड कलर की चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इज़ द डायरेक्शन ऑफ कुबेर। सो और नॉर्थ में ब्लू कलर होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए। लेट्स से आपके नॉर्थ में ना घर ओपन हो रहा है, आपका मतलब एंट्रेंस है नॉर्थ में, और आपने लाल रंग की गाड़ी, रेड कलर की गाड़ी अपने घर के आगे खड़ी करी हुई है, तो वो भी आपकी सेविंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सेविंग्स को बर्न कर रहा है। सो नॉर्थ कूल होना चाहिए। वैसे तो सारी आपका घर वाइट कलर का होना चाहिए और थोड़े थोड़े कलर्स के एलिमेंट ऐड करने चाहिए, पर जो अगेन जो नॉर्थ है वो ब्लू कलर का ही होना चाहिए। और नॉर्थ डायरेक्शन में आपका कमोड नहीं होना चाहिए, आपका फ्लश नहीं होना चाहिए, आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल फ्लश अवे द मनी। और उसकी आप रेमेडी भी कर सकते हो, अगर नॉर्थ में अगर आपका वॉशरूम है, अपने कमोड के अराउंड ऐसे टेपिंग कर दो स्क्वायर में, दैट विल ऑल्सो नॉट लेट योर मनी फ्लश डाउन। बढ़िया, यहाँ पर आपको खुद भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप मनी कहाँ लगा रहे हो, कहाँ आपका मनी लीक हो रहा है। सो हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अपने अकाउंट्स रखो, अपना बजटिंग करो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको हेल्प करेगा फिर फ्यूचर में। देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर रिलेशनशिप, so we have the Hierophant. So Hierophant here shows कि आप अपने रिलेशंस को बड़ा ध्यान से रख रहे हो। ऐसा हो सकता है पायल टू, आपको गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जल्दी होता हो, आपको शायद बार बार चीज़ें दूसरे को बताना, मतलब आप कोई चीज़ बताते हो और दूसरा कहता है क्या है, क्या कहा, उसे मतलब सुना नहीं या समझ नहीं आया, तो आपको फिर से वो चीज़ रिपीट करनी पड़ती हो। या फिर आपके फैमिली मेम्बर को कोई हियरिंग इशू हो, तो अब आपको वही चीज़ दूसरी, तीसरी, चौथी बार रिपीट करनी पड़ रही है, और वो आपको करना अच्छा नहीं लगता। पायल नंबर 2, आपको चीज़ें रिपीट करना, बात रिपीट करना पसंद नहीं। सो द हायरोफेंट हियर इज शोइंग 1 year फ्रॉम नाउ यू आर calming डाउन, यू आर गिविंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू योर एल्डर्स आर हैप्पी विद यू, आप बच्चों को प्यार देते हो, बच्चे आपसे बड़े खुश हैं, द यंग पीपल आर रियली हैप्पी विद यू। आपका कहीं ना कहीं नेचर थोड़ा और काम डाउन हुआ है और शांत हुआ है। मे बी आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ रहे हो, आप योगा, प्राणायाम, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो आपको शांत कर देती है, मेडिटेशन कर रहे हो जो आपको शांत कर देता है। तो दैट्स वाई योर रिलेशनशिप सीम्स टू बी गुड, योर रिलेशनशिप रियली सीम्स टू बी प्लेजेंट, सीम्स टू बी गुड 1 year फ्रॉम नाउ। आपका अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा लग रहा है, आपका अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ या पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बॉसेस के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका मन यहाँ पर आप काफ़ी रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हो। आपने अपने ऊपर वर्क करा है, आपने देखा कि मेरे को अपनी मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल पीस को लेट गो नहीं करना किसी दूसरे की वजह से। आई हैव टू कीप द रिमोट कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस इन माई हैंड ओनली, आई शुड नॉट गिव देम टू अदर पीपल। तो आपने डिसाइड कर लिया, तो आपका हर एक रिलेशन यहाँ पर शांत और अच्छा नज़र आ रहा है।
तो यहाँ उसका डिसएग्रीमेंट्स फैमिली के साथ पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं नज़र आ रहा. इफ़ यू आर मैरिड देन ऑल्सो यहाँ पर आपका अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप काफ़ी काम, काफ़ी कंपोज्ड नज़र आ रहा है. यहाँ पर एज सच रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई है. यानी चीज़ें उस सेक्टर में नॉर्मल जैसी चल रही है वैसी चल रही है. पर हाँ, इफ़ लाइक 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये हम कह सकते हैं, इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप 1 ईयर फ्रॉम नाउ उनके साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, काम है, स्टेबल है, ट्रस्ट बढ़ा हुआ है. यू ट्रस्ट योर पार्टनर, ये नज़र आ रहा है. अबाउट योर हेल्थ we have the Six of Pentacles. Six of Pentacles is again a positive card. Like Six of Pentacles shows कि जो चीज़ आप देते हो वो चीज़ में भरपूरता है. जैसे अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें तो आप वो खाने की चीज़ें जो है दूसरे को देते हो, आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है. मतलब अगर आपको अपना डाइजेशन अच्छा करना है तो खाना दान देना शुरू करो, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा. तो सिक्स ऑफ पेनिकल शोज़ कि आपके जो पास्ट के गुड कर्मास हैं, जो आपने गुड चीज़ें करी है दूसरों के लिए, जो आपने ब्लेसिंग्स अर्न करी है, वो उन ब्लेसिंग्स का आपकी हेल्थ पर गुड रिजल्ट है. आप यहाँ काफ़ी खुश, सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट आप मांग नहीं रहे किसी से कोई भी चीज़ कि मेरे को सुख दो, मेरे को शांति दो, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो. नहीं, आप ये कोई चीज़ नहीं मांग रहे हो, ऑलरेडी आपके पास है. आप भरपूर यहाँ पर नज़र आ रहे हो. आप दूसरों को जो सुख और शांति की वाइब्रेशन दे रहे हो, ये जो भी उनको चीज़ चाहिए आप वो प्रोवाइड कर पा रहे हो. यू आर द प्रोवाइडर. आप मांग नहीं रहे हो, आप दे रहे हो. और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी गुड और फिजिकल हेल्थ भी गुड, उसको शो करे. आपको दूसरों की हेल्प नहीं चाहिए अपना डे टू डे रूटीन को फॉलो करने के लिए. अगर हेल्थ ठीक नहीं होती तो हमें हेल्पर्स चाहिए ना, हमें कोई हेल्प करने वाला चाहिए, नहाने धोने के लिए भी कोई, हम खाना खिलाने के लिए भी हमें कोई चाहिए. वेयर इज यहाँ सिक्स ऑफ पेनिकल शोज दैट यू आर द इंडिपेंडेंट वन, यू आर हेल्पिंग अदर पीपल, यू डोंट नीड हेल्प. तो आप मेंटली और इमोशनली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल नज़र आ रहे हो, इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हो. आपने अपनी खुशी का भी रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं दिया कि भाई ये पर्सन हो तो मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है. आप नेचुरली खुश हो, आपकी खुशी आपके हाथ में ही नज़र आ रही है. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट और क्या इंफॉर्मेशन है पायल नंबर 2 के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ. 1 ईयर फ्रॉम नाउ. Okay, we have the spring rebirth and we have the shivling here, we have the entrance, we have this beautiful tree which seems to, of course, it only, or maybe it blooms in some other season as well, but मैंने जहाँ तक देखा है स्प्रिंग टाइम में ऐसे कलरफुल ट्रीज जो है ग्रो करते हैं. समर में भी बहुत जब गर्मी होती है तब वो येलो कलर के ट्रीज जो हैं वो ग्रो करते हैं. नॉट येलो कलर के ट्रीज बट उन ट्रीज पर येलो कलर के पत्ते होते हैं, फूल होते हैं ऐसा. सो इट शोज द स्प्रिंग टाइम रीबर्थ. एंड अगेन यू कैन बी अ डिवोटी ऑफ शिवा पायल नंबर 2. आप शिव टेम्पल में जाते हो, यू कैन बी अ डिवोटी ऑफ शिव, यू कैन बी, और यू कैन बी अ डिवोटी ऑफ भैरव, दैट कैन हैपन. यू आर समवन जो काफ़ी स्पिरिचुअल इन नेचर भी होंगे, स्पिरिचुअल चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होगा. एंड इट शोज दैट यू कैन बी समवन जो शिव अभिषेकम भी करता होगा. दैट कैन हैपन हेयर विथ शिव लिंगम. एंड इट ऑल्सो शोज 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू आर डूइंग सम पिलग्रमेज ट्रैवल. कहीं अपने पिलग्रमेज ट्रैवल पर आप जा रहे हो, एक धार्मिक स्थल पर जा रहे हो. 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. और रीबर्थ का कार्ड है तो ऑफकोर्स लाइफ में एक रीबर्थ है. आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू आर अ चेंज्ड पर्सन एंड आप ब्लूम कर चुके हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ. मतलब आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप्ड है 1 ईयर फ्रॉम नाउ. आपका सोच विचार करने का तरीका बड़ा डेवलप्ड है, काफ़ी आप वेल इन्फॉर्म्ड नज़र आ रहे हो. ऐसा नहीं है कि दूसरा आप पर हावी हो रहा है, दूसरा पर्सन आप पे बहुत हावी है, दूसरे का आप पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. दूसरा पर्सन आपको इफेक्ट नहीं कर पा रहा, आप दूसरे को इफेक्ट कर पा रहे हो. आप दूसरे पर ज़रूर हावी हो सकते हैं पर दूसरा आप पर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी बहुत डेवलप्ड पर्सनैलिटी है. आप काफ़ी एक
ऐसे पर्सन हो जिसके स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स है 1 year फ्रॉम नाउ, और वो किसी भी हालत में वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आसानी से या हलचल से टूट नहीं सकते. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. सो या दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एस्ट्रोलॉजिकली. अगर हम देखें, साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, बिकॉज स्कॉर्पियो डेथ एंड रीबर्थ को शो करता है, and sign of Sagittarius as well, because we have Hierophant and we have the 6 of Pentacles. So yeah, so Gemini may we have the nakshatra of Mrigasira, Ardra, Punarvasu. Ardra is a nakshatra related to Rudra, which is the fierce form of Shiva. Then Leo में Magha, Purva Falguni, Uttar Falguni, Uttar Falguni spill करता है Virgo में Hasta, Chitra, and Uttar Falguni is also nakshatra of Shiva. It's a nakshatra where Shiva and Parvati got married. And Scorpio में we have nakshatra of Vishakha, Anuradha, Jyeshtha, और Sagittarius में मूला, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. ओहो, व्हाट डिड आई सेड. मूला में Sagittarius साइड में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा. अगेन मूला जो नक्षत्र है, इट्स अ नक्षत्र रिलेटेड टू काली, द गॉडेस काली, और इसी की ऑपोजिट नक्षत्र जो है आर्द्रा है. सो काली द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि वो जो त्रिमूर्ति है, वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर. ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश. यानी हम मास्टर ब्रह्मा बनते हैं और अपने नए संकल्पों को रचते हैं, नए थॉट्स को रचते हैं, और विष्णु द्वारा यानी सात्विक और जो सतो प्रधान जो सृष्टि है, जिसको हम सतयुग भी कहते हैं, उसकी याद हमें आती है. और जैसे जो मनुष्य बहुत सतो प्रधान थे, सतोगुणी थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म थे, वो जो है देवी देवता होते हैं. तो वो संस्कार हम अपने अंदर इमर्ज्ड रखते हैं हमेशा. तो हमारा विष्णु मास्टर, वो हमारा विष्णु रूप है. और फिर शंकर द्वारा विनाश, उससे हम अपने पुराने संस्कारों का और रावण रूपी संस्कारों का विनाश करते हैं अपने अंदर से, और नई सृष्टि की रचना करते हैं, जिसको हम सतयुग या हेवन कहते हैं, या अल्लाह का बगीचा कहते हैं. सो दैट्स देयर. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. And also, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can check these bracelet sets out on the website. Again, right now I'm wearing the citrine, amethyst, the C set, which consists of clear quartz, blue jasper, and malachite. So you can get them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपने ये mountain वाले picture को pick करा है. Let's get started with your reading. हम tarot से ही शुरू करेंगे. So pile number 3 की life 1 year from now. Okay, this card is already coming. So we have the 5 of cups. So आपकी life pile number 3 1 year from now, your reality 1 year from now seems with the 5 of cups कि आप काफ़ी किसी चीज़ को लेकर खुश हो, किन्हीं चीज़ों को लेकर उदास भी हो क्योंकि वो चीज़ें आपको नहीं मिली. But there are few things which you got, which you achieved with your own hard work, but you are thinking a lot about जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई. And also with the 5 of cups, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है, पहला कार्ड आया टेरो से, तो ये आपकी करंट एनर्जीज को भी शो करता है.
वॉट आई रियली फील इज़ कि ये आपकी करंट एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 ईयर फ्रॉम नाउ. ये करंट एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपने कुछ चीज़ें तो मिली है, आपको कुछ चीज़ें तो आपको अचीव हुई है, कुछ चीज़ें मिली है, बट कुछ चीज़ें जो नहीं मिली उसको लेकर आप यहाँ पर डिससेटिस्फाइड और डिसहार्टन फील कर रहे हो. So this is what, and yes, what I feel with the 5 of Cups is also कि जो चीज़ों के बारे में आप disheartened हो वो 1 year from now आपको मिल रही है. जो चीज़ें आपको लगता है कि अभी आपको नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्यों मैं ये नहीं कर पाई, क्यों ऐसा, वो 1 year from now ये चीज़ें आपको मिल रही है, ये चीज़ें आप अचीव कर पा रहे हो. So that's why this card came. And फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे है जो आप फुलफिल कर पा रहे हो, जो शायद आप अभी फुलफिल नहीं कर पाए वो फैमिली एक्सपेक्टेशंस, बट 1 year फ्रॉम नाउ वो फैमिली एक्सपेक्टेशंस आप फुलफिल कर पा रहे हो. एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ पेनिकल्स. नाइट ऑफ पेनिकल्स जो है एक सेट्रेनियन कार्ड है. सैटर्न एक स्टेडी ग्रोथ देता है, एकदम से ग्रोथ नहीं देता, और नाइट ऑफ पेनिकल्स भी डीलेस को शो करता है. विद द 5 इन कंजंक्शन विद द 5 of Cups इट अगेन शोज़ मी कि अभी कुछ चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपकी फैमिली जो है थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं. आपको ऐसा फील हो कि मैं अपने परिवार की इच्छा पूरी नहीं कर पाई, और 1 year फ्रॉम नाउ वो इच्छा आप पूरी कर पा रहे हो अपने परिवार की, जो आप अभी पूरी नहीं कर पाए. नाइट ऑफ पेनिकल्स ये भी शो कर रहा है 1 year फ्रॉम नाउ यू सीम टू बी रियली प्रैक्टिकल. यू सीम टू बी समवन जो खुश है भी ना, तो चेहरे से ऐसा लगता नहीं कोई खुश है. मतलब खुशी की बात है, मतलब इवन इफ़ यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर करियर, आपको बहुत मनी मिला, उसके बाद भी और लाइक कि ओके व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू डू. मतलब चेहरे पर वो एक न्यूट्रल सिचुएशन है चेहरे की. तो ऐसा नहीं है चेहरे पे 12 बजे हुए, नहीं, चेहरा न्यूट्रल है, ना बहुत खुश ना उदास, न्यूट्रल, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग. सो आप बहुत खुशी की चीज़ में बहुत खुश नहीं हो और बहुत उदास की चीज़ में बहुत उदास नहीं हो. यू सीम टू बी रियली न्यूट्रल. यू हैव ग्रोन अप, यू हैव रियली मैच्योर्ड इन जस्ट 1 year. यू आर अ ग्रोन अप 1 year. एंड यू आर बिकमिंग समवन जो बड़ा सीरियस रहने वाला पर्सन है. गंभीरता का गुण आपके चेहरे से ही नज़र आ रहा है, आपके चाल चलन से नज़र आ रहा है 1 year फ्रॉम नाउ. और बिकमिंग अ मेच्योरर पर्सन 1 year फ्रॉम नाउ. और आप हर चीज़ को लेकर घोड़े पर सवार नहीं रहते. यू आर लाइक ओके दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू, ऑल राइट, ओके इस काम को इस समय पे करेंगे, ओके. और उसके बाद आप थॉट नहीं क्रिएट करते, और जब समय आता है तो फिर आप वो काम कर लेते हो. आप वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे. कई बार एक्साइटमेंट की वजह से हम सो भी नहीं पाते हैं ना, तो वो सिचुएशन ऐसी नहीं नज़र आ रही 1 year फ्रॉम नाउ. आप अगर कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़ है तब भी आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और आराम से सो जाते हो. इट शोज़ दैट आप बहुत मैच्योर हो चुके हो 1 year फ्रॉम नाउ. Then we have the 4 of Swords. 4 of Swords also shows relaxation, good rest, healing. So 1 year from now आप बहुत healed नज़र आ रहे हो, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली आप बहुत healed नज़र आ रहे हो और बहुत शांत नज़र आ रहे हो. और आपको पता है कि कैसे टेंशन स्ट्रेस को दिल पर ना लिया जाए, कैसे किसी की कोई नेगेटिव बात को चित्त पर ना लिया जाए, मन पर ना लिया जाए, कैसे किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को अपने ऊपर हावी ना होने दें. तो यू नो इट. हम कहते ना, कई बचपन में हम कहते थे, अब कंप्लेन करते थे टीचर को या अपने पेरेंट्स को, उसने मुझे ये कहा, और टीचर या पेरेंट कई बार कहते थे डोंट गिव योर रिएक्शन टू देम. उससे उस पर्सन को फिर होगा कि भाई तुम्हें तंग करे, डोंट गिव देम द रिएक्शन. सो इट शोज विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 of Swords एंड विद द 5 of Cups यू आर नॉट गिविंग एनी रिएक्शन. आप कोई पुतले नहीं बन गए हो, बट आप बहुत मैच्योर हो गए हो. आपको पता है कैसे हम मैच्योरिटी से डील कर सकते हैं सिचुएशन को. एंड इवन विद दीज कार्ड्स, दिस 3 cards, इट शोज कि जैसे कोई चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर सामने वाले को पूरी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में. पर आप अपनी वो पर्सन शायद आपसे छोटी पोजिशन पर है, आप एक अथॉरिटेटिव पोजिशन पर हो, आप मे बी उनसे एज में बड़े हो, आपसे एज में छोटे, मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है. तो
इवन दो दे आर मोर नॉलेजेबल, आप अपनी सीट ऑफ अथॉरिटी नहीं छोड़ते हो, आप उसकी बात सुनते हो, और ऐसे सुनते हो जैसे आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आपके चेहरे से वो पता नहीं लग रहा कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आई है, आप बस उसको देखते रहते हो, एक ब्लैंक होकर उसको देखते रहते हो एंड दे सीम टू बी intimidated by you, they seem to be like, oh my gosh, file number 3. So वो दूसरा पर्सन सामने वाला जो है, इवन दो दे आर नॉलेजेबल, बट इट सीम्स कि आपका जो सिट्रेनियन नेचर है या आपका जो जुपिटेरियन नेचर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसको ही इंटिमिडेट कर देते हो, इंटिमिडेट ही कहते हैं ना, व्हाटएवर, लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक तरह से यू कैन हैव योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका असेंडेंट लॉर्ड कंजंक्ट और बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न और बाय जुपिटर। आपके चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है एरीज या टॉरस साइन में, या फिर कोई और साइन में ये सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है, या फिर सैटर्न कैन बी और आत्माकार का प्लैनेट, या फिर जुपिटर कैन बी और आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट। तो ये प्लेसमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट वी हैव द फूल। सो हियर इट शोज कि जब कोई साथ जब काम नहीं होता, जब जो है यू नो vacation time hota, again I see 1 year from now you're going on a vacation and you're really enjoying that vacation, you have tapped into your inner child in that vacation, you are really enjoying that vacation time. प्लस इट सीम्स कि आपने 1 year फ्रॉम ना आपने कोई पेट अडॉप्ट करा है, डॉग या कैट अडॉप्ट करे, या फिर कोई नेबरहुड के डॉग या कैट आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर आपकी नेबरहुड में अगर पैरट्स आते हैं या फिर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स आते हैं, तो बर्ड्स आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है। और बर्ड्स आपको पसंद करते हैं, इसका आपको कैसे पता लगेगा कि ये बर्ड्स आपको पसंद करते हैं? वो बर्ड्स आपके पास आएंगे लिटरली इट हैपन्स विद मी। जब मैं सुबह योगा कर रही होती हूँ ना, तो ऐसे पैरट्स आते हैं, लाइक आई हैव शिफ्टेड टू अ डिफरेंट प्लेस। 1 साल पहले मैं किसी और जगह पर रहती थी, चंडीगढ़ में ही रहती थी, अब भी चंडीगढ़ में ही रहती हूँ, बट एक डिफरेंट सेक्टर में रहती थी तब मैं, अब मैं एक डिफरेंट सेक्टर में रहती हूँ। तो वहाँ पर भी जो है, जब मैं योगा करती थी सुबह के टाइम पर, अगर मैं बाहर होती थी तो फिर पैरट्स आते थे। और फिर जब मैं इस नए सेक्टर में, इस नए घर में, इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ, तो शुरू में कोई पैरट नहीं आता था, बट जब फिर कुछ दिन हो गए, 1-2 हफ्ते हो गए यहाँ पर रहते रहते, तो पैरट्स आने लग गए। वही 3-4 पैरट्स का ग्रुप आता है, और वही ग्रुप जो है हमारे घर के बाहर जो है, स्पेशली हमारे घर के बाहर, हमारे घर के छत पर आता है। बैल्कनी की छत से वो दिखते हैं छत पे, और वो बैठे होते हैं और वो उल्टे होके मेरे को देख रहे होते हैं। और अगर मैं अपने लिविंग रूम में योगा कर रही हूँ तो वो लिविंग रूम में है, और अगर मैं अपने बेडरूम में योगा कर रही हूँ तो वो बेडरूम की बैल्कनी में है। सो दैट्स हाउ यू नो दैट दे लाइक यू। सो दे या so with the Fool card you can even have this kind of connection with some birds or with some dogs or cats. So that can happen 1 year from now. You make an animal your friend. फिर फूल कार्ड ये भी शो करता है कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू 1 year फ्रॉम नाउ। एक न्यू जर्नी, एक न्यू एडवेंचर आप अपनी लाइफ का स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट। और फूल कार्ड ये शो कर रहा है कि जैसे यहाँ पर भी हमें माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, और राइडर वेट्स का भी, आई थिंक राइडर वेट्स, और मेनली जो फूल कार्ड होता है वो माउंटेन्स को शो करता है। राइडर वेट्स के टेरो डेक में भी जो फूल कार्ड है उसमें भी माउंटेन्स हैं। और आपने भी जो पाइल नंबर 3 पिक्चर जो है चूज़ करी है, वो भी माउंटेन वाली, रॉकी माउंटेन वाली चूज़ करी है। सो इट डज शो यू आर समवन जो मुश्किल है, जो पहाड़ जैसी मुश्किल है, उससे भी डरते नहीं, उसका भी सामना करते हो। और आपको भी अगेन मौका मिलेगा 1 year फ्रॉम नाउ टू ट्रैवल टू अ प्लेस जहाँ पर थोड़ा आपको अपना फिजिकल बॉडी यूज़ करना पड़ेगा। एक रिलैक्सिंग वेकेशन पर नहीं जा रहे हो आप, एक एडवेंचरस वेकेशन पर जा रहे हो। मे बी यूर क्लाइंबिंग माउंटेन इन दैट वेकेशन। इट्स अ वेकेशन जहाँ पर स्पोर्ट्स एडवेंचर्स आपको करने हैं, ऐसा कोई वेकेशन पर आप जा रहे हो। एंड यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट अश्विनी और शतभिषाक नक्षत्र इन योर चार्ट, जो कि एरीज और एक्वेरियस रिस्पेक्टिवली इनमें होते हैं ये नक्षत्र। यू कैन हैव योर सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, या फिर प्लैनेट्स प्लेस इन अश्विनी, भरणी, कृतिका यानी एरीज साइन में प्लेस्ड है, या फिर एक्वेरियस साइन में प्लेस है। एक्वेरियस में भी अब धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्वा, भद्रपदा, इन नक्षत्र इन साइन में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे।
फिर यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स पुल आउट करते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3। All right. We have rainbow card. It says hope. Even the place you will travel, अब वहाँ से मैग्नेट्स ज़रूर खरीद कर लेकर आओगे। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो रहे हो, आप पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्टिक चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लोगे। एंड आई ऑल्सो फील आपका इंटरेस्ट कुकिंग में भी जो है जागेगा। कुकिंग करना और नई डिशेस तैयार करना, न्यू रेसिपीज़, तो ये आप ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इवन अगेन रेनबो होप कार्ड ये भी शो कर रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू आर हीलिंग योर इनर चाइल्ड, यू आर डूइंग थिंग्स जिससे आपका इनर चाइल्ड बड़ा खुश होता है। दैट्स वाई यू आर बीइंग क्राफ्टी। आप कोई पेंटिंग का सामान खरीदते हो और फिर पेंटिंग करते हो, तो यू आर हीलिंग योर इनर चाइल्ड 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आप अकेले एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो और अकेले ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। एंड यू आर रियली होपफुल, योर मेंटल हेल्थ सीम्स टू बी रियली गुड, यू आर बीइंग रियली होपफुल फॉर better life. Then you have peace. It says harmony. We have hope, rainbow, peace, harmony. तो बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर मेंटल हेल्थ नज़र आ रही है। हाँ, बहुत पीसफुल नज़र आ रहे हो। हार्मनी आपकी लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटिफुल। लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर यू। Pile number 3, about your career, about your finances, about your personal life and health. 1 ईयर फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 3 का करियर। अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में है, पाइल नंबर 1 उनका कैसा है करियर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये शो कर रहा है आप बड़ा ही पैशनेटली इन्वॉल्व हो अपने करियर में, और करियर में न्यू चीज़ें सीख रहे हो। चाहे आप एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में कोई नई चीज़ें आप सीख रहे हो और एनालाइज कर रहे हो, और उस नई चीज़ को सीख के बड़ा खुश भी हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है एजुकेशन में that you see a better future for yourself in the education you are getting। most of the time ऐसा होता है, हम देखते हैं, सुनते हैं कि क्यों हमने एजुकेशन ले ली, क्यों हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज पिक कर लिया, ये तो बहुत ही ख़राब यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ये तो बड़ा ही ख़राब कोर्स हमने ले लिया। नो, 1 ईयर फ्रॉम नाउ यू आर एबल टू सी योर फ्यूचर इन द कोर्स, इन द एजुकेशन यू आर गेटिंग। सो आप बड़ा ही पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाते हो, दिल लगा कर आप अपनी एजुकेशन को परस्यू करते हो। अगर आप जॉब में हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप अपने जॉब में देख रहे हो कि इस कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ तो है और बहुत आपके लिए पर्सनल ग्रोथ तो है इस कंपनी के थ्रू, और आपको ये कंपनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व कर रही है। सो यू आर हैप्पी विद द जॉब यू हैव। इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो बिजनेस में यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अगेन आप इन्वॉल्व हो, यू आर पैशनेटली इन्वॉल्व। यू कैन इवन मीट पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स एंड यू आर डीलिंग विद देम एंड यू आर क्रिएटिंग बिजनेस पार्टनर्स विद देम। दे आर योर क्लाइंट्स। अगेन क्लाइंट्स डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर या रिलीजन्स से हो सकता है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। अबाउट योर फाइनेंसेस। ओके, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस सेविंग्स है, अगर आप खुद अर्न नहीं करते, आपके परिवार में फिर जो अर्न करता है उस पर्सन के फाइनेंसेस और सेविंग्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि फाइनेंसेस और सेविंग्स दोनों ही, इनकम और सेविंग्स दोनों ही यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, एक ऐसे ग्राफ ऐसे अप जा रहा है। सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टूवर्ड्स अर्निंग। और अगेन आप अर्निंग दिल लगाकर कर रहे हो, आपको अर्निंग करते हुए, पैसे अर्न करते हुए ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा है, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मेरे को बड़ा ही हार्ड वर्क लग रहा है, पैसे अर्न करना कितना ही मुश्किल है। नो, यू आर नॉट गोना फील दिस वे। यू गोना फील कि मनी अर्न करना जो अगर किसी को आ जाए तो खेल है ये, और बड़ा ही मज़ेदार खेल है ये। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी सेव भी कर पा रहे हो और अपना मनी कुछ ऐसी चीज़ों में भी डाल रहे हो जो आप हमेशा से ख़रीदना चाहते हो। इट कैन बी सम लग्जरी थिंग, इट कैन बी सर्टन थिंग्स यू ऑलवेज वांटेड टू गिव टू योर पेरेंट्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ों पर भी आप मनी स्पेंड कर रहे हो जो एक्सपेंसिव है बट स्टिल आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। एंड अबाउट योर personal life, pile number 3, 1 year from now,
your relationships. So we have the King of Wands, we have the Page of Wands, Knight of Wands, and we have the King of Wands. King of Wands यहाँ पर see ये सारी ना energies हैं, स्पेशली ये वाले जो कार्ड्स है, ये टैरो वाली एनर्जीज हैं. तो ये शो करता है कि अंदर से आप बहुत एक्टिव हो, बाहर से शायद आप दूसरों को इनएक्टिव, बहुत ही न्यूट्रल और सेट्रेनियन लगो, बहुत प्रैक्टिकल, और इनफैक्ट एट टाइम्स दूसरों को लगे कि आप बड़े डल हो. बट वेन दे स्टार्ट टू वर्क विद यू दे नोटिस कि आप बहुत एक्टिव हो, आपका माइंड बहुत तेज़ काम करता है. इनफैक्ट जैसे कोई चीज़ फिजिकली, कोई चीज़ सच में गिर रही है तो एकदम से आप उसको पकड़ लेते हो, तो इट शोज़ आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, आप एक्टिव हो. तो सच में आपके चेहरे से नहीं लगता कि आप एक्टिव हो, चेहरे से लगता है कि बड़ा ही न्यूट्रल हो और ज़्यादा कोई एक्साइटेड नहीं हो या उदास नहीं हो, न्यूट्रल हो. बट आपके एक्शन से, आपके माइंड से, आपके वर्ड्स से, आपके काम करने के तरीके से पता लगता है दैट यू आर एक्चुअली रियली एक्टिव. यू जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट योर एनर्जी इनटू गिविंग एक्सप्रेशंस. और जितना हम एक्सप्रेशन देते हैं उतना वो जो एक सीक्रेटिव या एक हम कहते हैं जो चेहरे से एक व्हाट्स दैट टर्म, मैं भूल गई, इट वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग पर मैं वो भूल गई वर्ड. भाई हम एक फैक्टर रहता है सीक्रेसी वाला फैक्टर, और जितना हम सीक्रेसी वाले पर्सन होते हैं उतना ही दूसरा हमें जानने की कोशिश करता है, उतना ही दूसरे का इंटरेस्ट हम में बनता है. सो इट इज़ वी कैन से कि चेहरा ऐसे बिल्कुल ही नॉर्मल हो जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्रेशन ना हो, लोग उसको ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं. सो it shows that you have that kind of poker face and people want to get to know you. People are excited to know you. With the King of Wands, आपका जो relationship है, if you like with the King of Wands, it shows that you're really passionately in love with someone. 1 year from now, 1 year from now, you can even get in a relationship with someone जो उतना ही passionately आपसे attracted हो, in love हो. इफ़ यू ऑलरेडी आर इन अ रिलेशनशिप तो 1 year फ्रॉम नाउ आपका रिलेशनशिप, इस रोमांटिक रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ और भी इम्प्रूव हो रहा है और आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन, पैशन नज़र आ रहा है. यू कैन हैव वीनस मार्स कंजंक्शन इन योर चार्ट, या फिर मार्स इज एस्पेक्टिंग वीनस इन योर चार्ट, या फिर वीनस इज इन द साइन ऑफ एरीज, या फिर इज इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. तो ये शो करता है कि हाँ, अर्ली इन लाइफ देयर कैन बी ब्रेकअप्स. येस, क्योंकि मार्स शार्प ऑब्जेक्टिव, वीनस लव रोमांस, इट शोज ये प्लेसमेंट जो है ये ब्रेकअप वाली प्लेसमेंट है, हार्ट ब्रेक वाली प्लेसमेंट है. बट एज यू ग्रो एंड मेच्योर, स्पेसिफिकली आफ्टर द एज ऑफ 28, योर रिलेशनशिप्स विल स्टार्ट टू बिकम बेटर. आपको ये रियलाइज़ होने लग जाता है, और सामने वाला पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में है उसको भी ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि कहाँ पर मुझे स्टैंड लेना चाहिए, कहाँ पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकती हूँ. तो समझ डेवलप होने लग जाती है. बट फॉर लॉन्ग टर्म दिस कंजंक्शन इज एक्चुअली गुड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये वीनस मार्स का कंजंक्शन है, वीनस बीइंग एस्पेक्टेड बाय मार्स, ये पैशन को इंक्रीज करता है, ये कट नहीं करता, ये बुचर नहीं करता रिलेशनशिप को, ये पैशन इंक्रीज करता है, ये इंटिमेसी इंक्रीज करता है. With the King of Wands, you're going to become pile number 3, that person जो कि कहेगा कि after 10, 12, 13 or 20 years of marriage, there is that intimacy, there is that increasing love and trust with each other. जैसे कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं 6 years later in our marriage, 10 years later in marriage, कोई intimacy, कोई passion, कोई love, कोई romance नहीं है. तो आप उन लोगों में से नहीं होगे pile number 3. आप उन लोगों में से होगे जिनका जो मैरिज है, जिनका जो रिलेशनशिप है अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और भी ज़्यादा इंटिमेसी, पैशन, लव, रोमांस और अट्रैक्शन वाला होगा. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ यही शो कर रहा है. 1 year फ्रॉम नाउ, इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप अभी, तो 1 year फ्रॉम नाउ यू कैन गेट इन अ रिलेशनशिप विद समवन जो पर्सन अपनी करियर में भी बहुत ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व है, अपने करियर को बहुत पसंद करता है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और आपको बहुत लव रोमांस देता है, और आपको बहुत अपना टाइम भी देते हैं. दे आर वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट. योर पर्सन इज़ वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट, एंड दे ऑल्सो कीप अ टाइम, मतलब उनका ऐसा भी समय उन्होंने रखा हुआ है जहाँ पर वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हैं, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई ना कोई वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ज़रूर खेलते हैं, उसके लिए भी ये पर्सन समय निकालते हैं. एंड दे आर नॉट लेजी पीपल, दे आर रियली एक्टिव. उनका दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता है.
दे आर क्वाइट एक्टिव पीपल. दैट्स वाई वी हैव द फूल कार्ड जो कि शो कर रहा है शायद आप इस पर्सन के साथ ही वो एडवेंचरस वेकेशन पर जाओ जहाँ पर यू आर डूइंग ट्रैकिंग, जहाँ पर कोई अगेन आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो इस पर्सन के साथ. सो दिस इज what we are getting. फिर यहाँ पर आपके हेल्थ के बारे में, mental and physical health of pile number 3 1 year from now. So we have the 2 of swords. 2 of swords यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जिन चीज़ों के बारे में आप कंफ्यूज्ड थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, लाइक 2 of swords shows severe confusion and especially it's about health, it's about mental and physical health. So with the 2 of swords it shows कि आपको अपनी लाइफ, अपने हेल्थ को लेकर confusion नहीं होगा 1 year from now. You will know कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, मेरी बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है और क्या चीज़ मुझे नहीं सूट करती. अगर मैं किसी मेंटल हेल्थ इशू में हूँ, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मैं ना खुश हूँ काफ़ी समय से, मुझे एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ को लेकर, या फिर मुझे कोई समझता नहीं, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, तो इन चीज़ों से कैसे डील करा जाए. पता है, रियलाइजेशन है, खुद हमने पता कर लिया कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए. तो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करे कि आपको पता होगा कि मैं अपने डिप्रेशन से कैसे ओवरकम कर सकता हूँ. सेल्फ डायग्नोसिस कर लिया कि हाँ डिप्रेशन आ रहा है, पर कैसे इसको ओवरकम करें, ऐसी क्या चीज़ करो जिससे मैं इन चीज़ों से ओवरकम कर सकता है, कर सकती हूँ. एंड दैट इज़ अडल्टिंग. दैट इज़ लिटरली, जैसे हमने शुरू में भी कहा, यू आर बिकमिंग एन अडल्ट, यू आर बिकमिंग रियली मैच्योर 1 year फ्रॉम नाउ. यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. पेट खराब चल रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जो नेचुरल भी है, अच्छी भी है और मेरे पेट को सेट कर देती है. ये धीरे धीरे हमें पता लगने लग जाता है. बचपन में हम होता है ना ऐसा, हम उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं और हो सकता है वो पहले भी खाई हो और बीमार हुए और फिर खा ली, क्योंकि बचपन है, भूल जाता है बच्चा, गलती फिर होगी, क्या उसको समझ नहीं आया, तो उसके पेरेंट्स उसका टेक केयर करता है. पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम वो चीज़ें फिर खाना अवॉइड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है ठीक नहीं है हमारे लिए, ओके अवॉइड. पर किसी दिन ऐसा हुआ कि पेट खराब हो गया एज एन अडल्ट, तो हमें पता होता है कि हमें क्या लेना चाहिए. उसी तरह अपनी मेंटल हेल्थ को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ. डिप्रेशन हर किसी को आता है आज की डेट में, हम चाहे जितना मर्जी खुश हों, पर अगर हम थोड़े स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में चले जाएं, हमारी खुशी गायब हो जाएगी कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में गायब हो जाएगी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है. और डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है आज की डेट में. तो हर किसी को अपना पता होता है कि कैसे मैं ठीक हो सकती हूँ. सो विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पास भी अपने डिप्रेशन का, अपने मेंटल या फिजिकल हेल्थ इशू का सोल्यूशन पता है कि क्या करना चाहिए जिससे मैं बेटर फील करूँगी या करूँगा. यू विल नो दैट. सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. एंड अगेन म्यूज़िक बिकम्स वन ऑफ द थिंग्स जिससे आप बड़ा अच्छा महसूस करते हो, ये यहाँ पर शो रहा है. एंड इवन जब आप कोई ड्रामास देखते हो, चाहे वो सी ड्रामा है, के ड्रामा है, देन ऑल्सो यू विल फील हैप्पी. आई सी दैट व्हेन यू डू समथिंग रिलेटेड टू किड्स एक्टिविटी, तब भी आप खुशी महसूस करते हो, चाहे वो आर्ट्स, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक है, यू फील हैप्पी. जब आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तब भी आप खुश होते हो. दैट आई सी. तो इन सब चीज़ों से आप अपना मेंटल हेल्थ ठीक कर लेते हो, अपना फिजिकल हेल्थ भी ठीक कर लेते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या और इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के बारे में 1 year फ्रॉम नाउ. ऑल राइट, सो वी हैव ऑटम, वी हैव ब्यूटी, वी हैव द बुद्ध हेयर. सो गौतम बुद्ध भी बिठाए हुए हैं. सो नंबर 3, it shows कि 1 year from now you're able to sit in the calm environment. आपको वैसे इतना आइसोलेशन, अकेलापन नहीं महसूस होता 1 year from now. You actually enjoy being isolated, being alone. You enjoy it more. और कहीं ना कहीं आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, आप अपने आप से बातें करते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो, and enjoying the time.
शायद जो चीज़ें लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो चीज़ें आपको अच्छी लगती है 1 year from now. And you can have like a prominent Purva Bhadrapada or an Uttar Bhadrapada nakshatra. Uttar Falguni, Purva Falguni nakshatra can also be prominent in your chart. Hasta can be prominent in your chart. ये लियो और वर्गो साइन में प्लेस्ड होते हैं नक्षत्रस, और पूर्वा भद्रपदा उत्तर भद्रपदा आपके एक्वेरियस और पाइसिस में प्लेस्ड होते हैं. सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगेन जो चीज़ें ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद वही चीज़ें आपको पसंद है. आइसोलेशन आपको बहुत पसंद है, अकेले रहना, अकेले चीज़ें करना आपको बहुत पसंद है 1 year from now. सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगेन साइंस हम देखें तो साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ लियो, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, ये प्रोमिनेंट है. सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है. वर्गो में हस्ता, चित्रा, और इवन सेजिटेरियस साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. सो सेजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा स्पिल करता है. कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है. एक्वेरियस में शतभिषाक, पूर्व भद्रपदा, फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है. पाइसिस में उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होंगे इन द D1 चार्ट या D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांश चार्ट. सो या दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you, pile number 3, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, malachite, clear quartz, and the blue jasper. So this is the C set. You can check them out on the website itself. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.